Good to go. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लव आजकल आज है तो नहीं है कल, बदलता रहता है ये हर मौसम पल पल। प्यार का अपना लिखे कोई फसाना, लॉन्ग लास्टिंग लव का हुआ गुजरा जमाना। लव आजकल हुआ बहुत बचकाना। आई लव यू की भी बदलती परिभाषा, कभी ये दोस्तों वाला लव, कभी ऑनलाइन नेटवर्क वाला लव, कॉलेज वाला लव या वैलेंटाइन वाला लव, या फिर सिर्फ टाइम पास वाला लव। इन सब में दब गया बेचारा ट्रू वाला लव। हमारी प्रेम कहानी हुई आउटडेटेड, प्रेम पत्र और आंखों की भाषा हुई ओवररेटेड। आइए हम सब मिलकर सुने आपकी जुबानी कि आपका लव आजकल या आपकी कहानी वही पुरानी। आइए कविता जी, सुनाइए हमें अपनी कहानी। Oh wow. सबसे पहले तो बहुत अच्छा मनीषा. I think you should publish a book of all your poems, and you have so many appreciators here. So buyers में तो कोई कमी नहीं रहेगा. You must do And that. she can make instantly so beautiful liners, and that's Absolutely. amazing. Very nice, Manisha. And thank you for giving us this beautiful theme today, Nidhi and Manisha. We are loving all the pinky babies. for your प्रेम कहानी मैडम, थैंक यू स्पीच नहीं। Oh, mera prem kahani will take long actually, and it's actually long back. So more than 25 years ago. So 2 minute में तो कुछ नहीं होगा मनीषा. But देखो जब पुराना लव तो क्विकी पे आ जाता है 25 साल बाद। So I will not say much about my love because I believe my love will be कल आज कल same boring. बहुत इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं बोलने के लिए, बट टुडे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑन लव. सो लव कैन बी एनीथिंग. जैसा पायल वेट कर रही है अपना नेशन के प्रति प्यार दिखाने का, somebody might be waiting अपने बच्चों के प्रति प्यार दिखाने का. सो लव कैन बी एनी फॉर्म. फ्रेंड्स का प्यार, बच्चों का प्यार, सिस्टर का प्यार, मम्मी का प्यार. बट फॉर मी आई थिंक लव सुन के मेरे को तो अपने हस्बैंड का ही प्यार ज्यादा सबसे पहले स्ट्राइक करता है. एंड आई थिंक लव कैसा भी हो, अच्छा बुरा, लव होता है. सो वो चाहे गुस्से वाला हो, प्यार वाला हो, इट हैज टू बी लव. एंड लेट्स हियर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. मेरा छोड़ो, तुम्हारा कि जो तुमने बता दिया कि तुम्हारा बचपन वाला, कॉलेज वाला, फिर प्यार वाला, सब प्यार हस्बैंड पे जाके टिक गया है। यस. अब बबली भाविका आएगी, प्यार के बहाव पे समय की पाबंदी लगाएगी। प्यार में डूब जाना तो है मजबूरी, पर समय पे रहना है उससे भी ज्यादा जरूरी। भाविका. Yes, so today you will all hate me more because I will be giving a stop to your love story at sudden. So please don't blame me for that. मैं वो दिल से करूंगी कि सबकी सुन पाए अपने. तो सबको थोड़ा थोड़ा समय दे देते हैं और I will share a screen 3 minutes for the one Ready. who have prepared the speech, the ready speech people. Their timing is 2 to 3 minutes. So when you have 30 seconds left, I will share a screen of a timer and you will get an idea कि it's only 30 seconds left. So quick कर लेना जैसे मनीषा ने बोला, end up fast. And similarly for the on the spot speech, we have 2 minutes. So same way it goes. I will share a screen for the timer and at the end, I will mute you, both the ready and on the spot people. I will mute you once you have crossed your time. तो जो भी हो, प्यार भी हो, एक सीमा बांध रहे आज उसके ऊपर. ऐसे जनरली होते नहीं है प्यार में कोई सीमा, बस इधर रख रहे थे. लव की भाषा में कौन सा शब्द सुंदरता बढ़ाएगा, ये हमारी डियर प्रिया के अलावा हमें और कौन बताएगा? Yes, so we have word of the day. So let me share the screen and we can see this. So girls, today we have a very nice word of the day.
It said caught someone's eye. So what does it mean, catching someone's eye? I can say the poem by Manisha ji really caught my eye. Means it caught my attention. So anything can catch your eye essentially. For example, dress on the mannequin immediately caught my eye. So it's you can use it anywhere. It just means catching your attention. What caught your attention? Let us know in your speeches. Over to you, Manisha ji. Now I would like to invite our evaluator, Nidhi Mohta ji, who is going to see your flow to give you some more glow. She is going to evaluate in a flow. Nidhi. Hello? Why are you calling this time? Husband calling this time. You're so sweet. You don't let me frown. Tell me honestly, how many pegs you're down? Bye. I can evaluate my love of life and how. So today's is the Love Aajkal theme of this session. And trust me, it will be fun, happiness, and of course, lots and lots of wisdom. So as we all know that I am the evaluator for this session, and we are looking forward from some amazing love stories with the techniques I've already told you before. And this time it is level 2. We'll make sure to see you more meticulously. So all the best and be in love. Let us paint the sky pink. Over to you, Manisha ji. दोस्तों, आज हमारे बीच एक मेहमान भी है आया, प्यार की इस मौके पे मुस्कुराहट की सौगात साथ लाया। सरोज जी, आपका फ्राइडे ऑन माइक पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करते हैं हमारा रेडी स्पीच सेक्शन, जहाँ पे हमारे वक्ता जो पहले से स्पीच तैयार करके आए हैं वो अपनी बातें कहेंगे। स्पीच का ड्यूरेशन होगा 2 to 3 मिनट्स। एंड उसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी वक्ता बबीता झुंझुनवाला। बबीता जी। I was hoping you won't call me first, और आपने वही किया। So Babita ji, are you ready? Your time starts. You're ready? Yeah. So your time starts I'm giving my speech today. now. 3 minutes left. I'm speaking in Hindi. Because your face is not visible because of the backlight. Timer, please stop the time. Yeah, I have. Now it's okay? Yeah, perfect. Yeah, perfect. So Babita ji, your time starts now. 3 minutes left. Okay. तो मैं बोलने जा रही हूँ, प्यार कल भी था, प्यार आज भी है, और मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ कि कल वाला प्यार मेरे लिए तो मिल्स एंड बून का प्यार ही है। वो मिल्स एंड बून के बुक्स पढ़ते हुए बड़ी हुई, किताबें पढ़ते हुए बड़ी हुई, और वही टॉल, डार्क एंड हैंडसम की छवि मन में, लंबा चौड़ा गेहुआ रंग और खूब सुंदर। तो जब मैंने पहली बार अपनी पति को देखा तो मुझे लगा कि चलो एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई है मेरी। टॉल भी था, हैंडसम भी है, सुंदर भी है। हाँ, गेहुआ नहीं है, गोरा है। लेकिन मैं बोली हाँ वो तो चलता ही है। उसके बाद जब शादी हुई तो कुछ ख्वाहिशें तो ढेर हो गई, लेकिन उसी में मैंने अपने मिल्स एंड बुन की कहानी ढूंढ ली। उसके बाद सफर चलता गया तो हम लोग ने प्यार ढूंढा स्काई रूम की रेस्टोरेंट में, फ्लूरीज के नाश्ते में, और वो सुबह वाली चाय की प्याली में जो हम लोग रोज सुबह एक साथ में पीते थे। और हम लोग एक दूसरे के कैसे मनाते थे, मैं रूठती थी तो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाते थे, और वो रूठते थे तो मैं उनकी मनपसंद का खाना बनाती थी। मैगी तो उस टाइम भी था ना हम लोग के जमाने में, 2 मिनट वाली मैगी, लेकिन हम लोग उसको ऐसे तुरंत बना के नहीं सर्व करते थे, नहीं पेश करते थे। हम लोग उसमें सब्जी डालते, चीज डालते, उसको स्वादिष्ट बनाते और उसको बहुत प्यार से परोसते। आज के जमाने की मैगी कुछ दूसरी है। उसको 2 मिनट में तो उबाला, परोसा, और जैसे कोई तुरंत खा लो और काम खत्म।
और आज के जमाने में मिलना जुलना, शादी हो जाना, अलग हो जाना, उसके बाद में डिवोर्स, जैसे कोई हम लोग एक ही सांस में बोल देते हैं कि सब हो गया। लेकिन जो जोड़ियां एक साथ रह पाती हैं उसकी उनकी कहानियां कैसे होती है, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। उन लोग साल में 4 बार घूमने जाते हैं, लेकिन घूमने जाने के पहले तो बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं ना। पहले तो शॉपिंग जाना रहता है। शॉपिंग क्यों जाना है? क्योंकि एक जैसे कपड़े खरीदने हैं। आखिर में फोटोज तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अच्छे लगने चाहिए ना, कि हम लोग इतने अच्छे जोड़ी हैं, हम लोग वी आर सो मच इन लव, हम लोग में इतना प्यार है, वो तो दिखाना दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर पति रूठ जाए तो पत्नी क्या बोलेगी, चलो मैं बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ, अरे घर पे कौन बनाएगा यार। और अगर पत्नी रूठ जाती है तो पति को लगता है अरे मुझे तो अब डायमंड रिंग ही देना होगा, नहीं तो खुश नहीं होगी। और जब बाहर जाते हैं घूमने तो ब्रांडेड के बगैर तो क्या शॉपिंग हो सकती है, तो उतनी तो मुझे चाहिए ही। तो ये सब कुछ कुछ कहानियां हैं जो हम लोग देखते हैं कि कल की क्या थी और आज की क्या थी, क्या है। और मैं यही आशा करती हूँ कि कल का जो समय आएगा उसमें कुछ स्वाद आज का हो, कुछ स्वाद कल का हो। मैंने कितना सही किया कि मैंने आपको उठाया। जब आगाज इतना अच्छा हुआ तो अंदाजे बयां आगे कितना सुंदर होगा। आपने अपने छोटे से भाषण में कल आज को बहुत खूबसूरती से समेटा। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी ममता जी को। ममता जी सेक्सरिया। हेलो, सुन रहे हैं मेरा? आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अब ठीक आ रहा है? नहीं नहीं। हेलो, अब ठीक आ रहा है? हाँ, थोड़ा बेटर है। बेटर हुआ। ठीक है ना? यस। हाँ, so Mamta ji, are you ready? Can I start your time? Your time Yes, starts now. 3 minutes मेरी left. प्यारी सहेलियों, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब दोपहर की धूप का मजा ले रहे होंगे। मैं ममता, मेरे आज का विषय है प्यार। प्यार क्या है? प्यार एक इतनी मीठी भावना है जिसकी परिभाषा उम्र के हर पड़ाव के साथ साथ बदल जाती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे प्यार की परिभाषा के दायरे में लोग एक एक करके अपने हिस्सा लेते जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि सच में हम किससे प्यार करते हैं। प्यार एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ किसी एक के साथ नहीं हो सकता। उम्र के हर पड़ाव में इसके अलग अलग रूप होते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। बचपन में मुझे माँ बाप के अलावा प्यार के लिए कोई दिखता ही नहीं था। मेरा सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए था। फिर जैसे ही मैं बड़ी हुई, मेरी मुलाकात मेरे प्रिंस चार्मिंग के साथ हुई। मुझे लगा बस अब इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। देखो, अब समझ में आ रहा है कि दिल कैसा है, कितना बदमाश है, ये कब किसे प्यार करता है, कभी किसे प्यार करता है। फिर जब मैं माँ बनी तो मुझे लगा अरे बस अभी बच्चे ही है मेरे लिए सब कुछ, इसी का प्यार मेरे लिए सर्वप्रिय है। न जाने तो मैंने देखा कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी बढ़ती जाती है, हमारे अपनों के दायरे बदल जाते हैं। हमारे प्यार का जो घेरा होता है ना, वो बदल जाता है और हमारे अपनेपन की सीमा में वो आ जाते हैं। पर आजकल के नौजवान वो इन सब से परे है। उन्हें प्यार का उनका परिभाषा ही अलग है। जैसे कि उन्हें तो सिर्फ अपने आप से ही प्यार है, उन्हीं की महत्वाकांक्षा उनके लिए सब कुछ है। किसी के न प्रति कोई स्नेह है न कुछ है। लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार संसार है। मैं जिसे प्यार को जिम्मेदारी के रूप में लेती हूँ, जिसे मैं अपने आप को इस प्यार रूपी जिम्मेदारी के दायरे में मैं अपने आप को ढाल लेना चाहती हूँ। प्यार जो समय के साथ साथ बदल जाता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तो हमारे अंदर की भावना है जो अपनों के लिए होती है। ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होती है कि मेरे हस्बैंड के लिए है कि मेरे माँ बाप के लिए, ये सबके लिए है। ढाई अक्षर के इस प्यार का मतलब जो जिंदगी में अपनों के साथ साथ धीरे धीरे चलती है, जो कभी खत्म नहीं होती है, ये एक ज्वार और भाटा के रूप में है और एक नश्वर है।
मनीषा, हाँ, हाँ, it's over. I नहीं ये think अचानक से ओवर कैसे हुआ? आप म्यूट हो। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट का फ्यू लाइंस वी कुडंट हियर एक्चुअली। अंत में करके जो उन्होंने बोला तब तक उनका टाइम ओवर नहीं हुआ था। नहीं नहीं, नश्वर है was the last word, right? Yes. right. हाँ, तो we could hear it. Okay, now I would like to call Kirti Kedia. हेलो एवरीबॉडी, मैं आज हिंदी में बोलना चाहूँगी जो शायद मेरी बहुत अच्छी रही है, बट आप सबका सपोर्ट चाहूँगी। Kirti, your time starts now. 3 minutes. प्यार क्या है? प्यार प्यार दोस्ती है, जुनून है, ताकत है, प्यार जिंदगी है, प्यार इबादत है। हाँ, पर प्यार आजकल आज़ाद है। हम सही मायने में देखें तो प्यार का आजकल एक नया ही रूप हम सबको दिखता है। प्यार अपनी उड़ान भरने को तैयार है। रोज हमारी पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक नई ऊंचाई को छू रहा है प्यार। प्यार स्वच्छंद है, उम्र के लिहाज से, लिंग के भेदभाव से, शादी की जंजीरों से, शारीरिक संबंधों की गुलामी से। प्यार एक भावना है जो हमारे अंदर ही है, बस इसे जलाने के लिए कोई और चाहिए होता है। आज हम अपने अंदर अगर ज़्यादा इस भावना को, आज के युवा जो प्यार से ज़्यादा प्यार की आइडिया से प्यार करते हैं, उन्हें ये एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। प्यार हमें एक अच्छा इंसान, एक खूबसूरत इंसान बनाता है जो हमें इंस्टाग्राम पे दिखते रहता है। बच्चे ही नहीं, युवा ही नहीं, हम खुद इसी के शिकार हैं, जो कि हम ये मानने लगे हैं कि प्यार कोई दिखावे की ज़रूरत है। हमें भी लाइक्स चाहिए, हमें भी अपना एक आकर्षक पार्टनर चाहिए जिसको बहुत सारे लाइक्स मिले। बट प्यार सिर्फ एक दिखावा नहीं, यह एक बहुत ही गहरा एहसास है जिसके लिए पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है, इश्क एक जज्बा है जो रूह को छू जाए, इश्क एक इबादत है जिसके लिए एक ज़िंदगी कम पड़ जाए। आज के युवा और हम भी, हमें इश्क के नाम पे इतनी सारी आज़ादी मिली है कि हमारे लिए कोई बंधन मायने नहीं रखता, ना शादी, ना लिंग, ना हम तैयार हैं अपने युवा को ये फ्रीडम देने के लिए, पर हमें भी समझना चाहिए कि हम उस ज़माने के नहीं जिसे हम ये पर्टिकुलर फ्रीडम चाहते हों। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि प्यार के साथ आती है जिम्मेदारी, परिबद्धता, निश्चय, त्याग, ईर्ष्या भी और जलन भी। इनका एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट कोट मेरी तरफ से, ये इश्क नहीं आसान समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। शुक्रिया। कीर्ति जी, आपके इस आग के दरी में तो हम डूबते ही चले गए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत शब्द जितने प्यार के लिए हो सकते थे, आपने उन सबको अपने इस भाषण में समेट लिया। हमारा दिल बाग बाग हो गया। अब मैं अगले स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, शीतल जी को। Sheetal ji, are you ready? Yeah. So your time starts now. 3 minutes. Good afternoon, friends. I'm Sheetal Bavishi, and today I am talking on the topic of Love Aajkal on the platform of Cafe Mike. I'm very much excited as this topic is very much interesting as well as it is mysterious, because each one of us has their own definition and understanding of love. Let me share my view on love, as I feel that love is something that you cannot explain, but you have to feel it. And you can have love from your
siblings or your parents or your children or your friends or your better halves. So, but the better half love, I feel, is the most important in our life, as we spend most of our time with our better half. So let me share my story on this note, that mine is a arranged marriage, and my husband was the first, the only boy that I have met for the matrimonial meeting. We felt some connection, and we got engaged, and within 2 months we got married. My children always asked me a question that how would you spend a life, or how would you love a person that you have not known for any time? So I always reply them with a smile on my face that as we have met each other as unknowns, but still we are trying to know each other, and that is the beauty of our relationship and the love that we are feeling forever. So this is the love of 90s, that as the topic just suggests as love aaj or kal, aajkal. So that was the story of 90s, and let's talk about today. So as with the technological revolution, the today's love definition of love has been a little different. Nowadays the couple goals are like that: they want to live stay in a live-in relationship before committing to each other, and they have to express more on social medias, less than feeling. But at the same time, I must say that today's love has been liberal and without any restriction. As we can see the same gender relationship nowadays, we can have gay marriages, which is legal in our country and in all over the world. So these are the barriers that we felt in the older times, but now it has not been there in the modern times. And at the same time, I must say that the concept of loving yourself is very much important. And with this, I think the love will be defined, and will be defined in the modern times, but the purity should be there. Thank you so much. Very nice, Sheetal ji. Very nice. Thank you. I've just prepared before half an hour. ये बात मुझे नहीं सुननी, हम आपके It is not an explanation, actually. I'm just sharing my feelings. नहीं, हम 8 दिन मेहनत करते हैं इसके लिए, तो हमें अच्छा लगेगा 7 दिन में से 5 दिन भी प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे के साथ आओ. Yeah. I was so yeah, it's okay. Now we are here for our last speaker of the Ready Speech section, Nipa ji. Nipa. Hello, can you hear me? Yeah, Nipa, you ready? Yeah. So your time starts now. 3 minutes left. Hi, मेरा नाम नीपा मेहता और मेरा आज का विषय है प्रेम आज और कल. प्रेम, क्या ये शब्द के मायने बीती कई सदियों में बदल चुके हैं? आइए इसे जानने का हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं. इसके लिए शुरू से शुरुआत करते हैं. प्रेम, ये जो 2.5 अक्षर का शब्द है, इसे समझने के लिए कभी कभी तो सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है और कभी ये एक पल में ही समझ में आ जाता है. कहते हैं ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए. तो आइए, प्रेम क्या केवल एक महिला और पुरुष के बीच के संबंध को ही कहते हैं? नहीं, प्रेम तो मीरा का कृष्ण के प्रति भी हो सकता है, कृष्ण का राधा के प्रति भी हो सकता है, कृष्ण का सुदामा के प्रति भी हो सकता है, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, अपना देश प्रेम, या कई प्रकार के प्रेम हो सकते हैं. लेकिन हर एक संबंध में प्रेम के मायने कुछ अलग अलग होते हैं. ये हीर रांझा का भी हो सकता है और रोमियो जूलियट का भी हो सकता है. ये प्रेम की गहराई को जानने के लिए मैं आपको एक रोचक कहानी बताना चाहूंगी. मेरे दोस्त के दादा दादी शायद उस जमाने के सबसे रोमांटिक कपल हुआ करते थे. हर काम वो लोग साथ में किया करते थे, बाहर साथ में जाना, खाना हर वक्त साथ में खाना. लेकिन एक दिन अचानक उम्र के पड़ाव के कारण दादी की याददाश्त चली गई. एक दिन तो दादा जैसे सुन से हो गए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और दफ्तर छोड़ दिया और सुबह से ही दादी के साथ वो रहने लगे.
दादी को हर समय के समय खाना देना, उसे सुबह उठ के तैयार करना, उसकी मनपसंद चूड़ियां पहनाना, उसको मनपसंद बिंदिया लगाना, सब कुछ वो करते थे। एक दिन मैंने कौतूहलवश ही पूछा, दादाजी, दादी को तो यही नहीं पता कि आप उसके लिए ये सब करते हो, आप उसके लिए खाने के लिए रुकते हो, तो आप ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, बेटा, वो मुझे नहीं पहचानती, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसका कौन हूँ। मेरे लिए शायद ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और उनके जैसा प्रेम शायद जिंदगी में मैं किसी और का ही देख पाऊंगी। लेकिन आजकल की चकाचौंध भरी जिंदगी में हम तोहफों, वर्षगांठ और जन्मदिन की जो सब गहराई है, उसी में हम डूब गए हैं। प्रेम हमारे आसपास तो है, लेकिन हमारे साथ साथ नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितनी प्रेम की ऊंचाई हम जानते हैं, उतनी प्रेम की गहराई भी हम जान सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा नीपा, खूबसूरत खूबसूरत भाषण, खूबसूरत कहानी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और सबसे अच्छा लगा कि अल्टीमेटली आप लोगों ने देश के प्रति अपने प्यार को हिंदी में भाषण दे दे के बताया कि अंदर में हिंदी है और बहुत सारी और बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं हमारे ऑन स्पॉट स्पीचेस की तरफ। कहते हैं प्यार में सबकी बोलती बंद हो जाती है, पर जब प्यार बहुत पुराना होता है तो औरतें बहुत ज्यादा बोलने लग जाती हैं, क्योंकि उनके पास 20-25 साल पुरानी कहानियों का बहुत सारा उदाहरण होता है, टोकरा पूरा भरा होता है। तो अब मैं शुरू करती हूँ हमारे ऑन स्पीच सेक्शन को। उसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी आरती जालान को। आरती, आर यू देयर? आरती, आप हिंदी में बोलना चाहोगे कि इंग्लिश में? मैं हिंदी में बोलूंगी। हिंदी में? हिंदी में आपका टॉपिक है तो आरती, आर यू रेडी? प्यार की परिभाषा शाहरुख खान या अजय देवगन जैसी? ओके, तो एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए प्लीज। Okay, I think I gave you 10 seconds time. Is it enough, Manisha ji, Nidhi? Shall I start the timer? Start. Okay, so Aarti, your time starts now. 2 minutes left. नमस्ते, मेरा नाम आरती है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। पहली बार मैं कुछ बोल रही हूँ। मैं बचपन से ना मैं बहुत फिल्मी रही हूँ और डेफिनेटली हिंदी फिल्मों की फैन हूँ, तो रोमांस तो अंदर एकदम भरा पड़ा है। और शाहरुख खान मेरा हमेशा से फेवरेट स्टार रहा है कि ऑब्वियसली उसकी तो आंखें देखकर किसी को भी प्यार हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक फैंटेसी जो ड्रीम वर्ल्ड जो होता है प्यार के मामले में, वो हम अगर शाहरुख खान को देखते हैं तो मुझे लगता है मेरे टाइम मेरी बेटी मेरी ज्यादा बड़ी फैन। मुझे लगता है कि सॉरी मुझे लगता है कि शाहरुख खान मेरी एरा का सबसे बड़ा रोमांटिक पर्सनालिटी रहा है और हर लड़की का एक ड्रीम मैन रहा है। तो या रोमांस की परिभाषा ही मुझे तो उसी से ही पता है। आके न लाडो पूरा पूरा सॉरी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है।
इट्स ओके। मनीषा जी? या कोई बात नहीं आती, आपने कोशिश की और गलती ये हुई कि आप शाहरुख खान की इतनी बड़ी फैन हैं और आप इतनी ज्यादा ओवरब्लेम्ड हो गई उसके बारे में कि एक्चुअली मेरी डॉटर भी आके मेरी गोद में बैठी ना, मैं कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप कोशिश करते रहिए, हमारे सेशंस में आते रहिए, आप और अच्छा बोल पाएंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी रिंकू सरावगी जी को। रिंकू? Yes, Manisha. Can रिंकू you hear me? हिंदी और इंग्लिश? Hindi. हिंदी? Yes. I want to try in Hindi. Do try. प्यार सबको हिंदी में ही हो रहा है, हमको लगता है। कनेक्ट कर सकते हैं ना। सही है। जस्ट अ मिनट, मैंने एक्चुअली सामने बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक रख रखे थे, उसको ट्रांसलेट कर दो। वही कर रहे हैं। क्या प्यार दोबारा हो सकता है? Okay. So Rinku, your time starts now. 2 minutes left. मैं रिंकू सरावगी, आज मैं बोलने जा रही हूँ क्या प्यार दोबारा हो सकता है। प्यार का कोई पीरियड नहीं होता। प्यार कभी भी हो सकता है। प्यार शादी के पहले भी था और शादी के बाद भी है। आप एक ही पर्सन से बार बार प्यार कर सकते हो। जैसे जैसे आप जानने लगते हो, आई थिंक हम उससे प्यार हमारा और बढ़ता रहता है। प्यार, जैसे सबने कहा कि प्यार पहले और अभी में फर्क है, मुझे लगता है कि प्यार का पहलू पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। खाली उसको एक्सप्रेस, उसे समझाने का तरीका बदल गया है। पहले हम अपने प्यार को इतना दूसरों के सामने सिर्फ हम महसूस करते थे, उनको इतना किसी के सामने अपना प्रकट नहीं करते थे। लेकिन अभी के जो लड़के लड़कियां हैं, शायद उन लोग अपने एक दूसरे को ज्यादा समझ पा रहे हैं, एक दूसरे में ज्यादा समझ है, तो उनका प्यार Sorry, can't speak. मनीषा जी? कोई बात नहीं रिंकू, आपने कोशिश की। मैंने कहा ना, प्यार अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली स्पीकर जैस्मिन। मैं भी हिंदी में ट्राई करूँ। बिल्कुल करिए। मैं आपको टॉपिक इंग्लिश में दे रही हूँ, बट उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगी। नहीं, वो मत करिए, कृपया हिंदी में ही टॉपिक दीजिए। मैं उसको हिंदी में ही दूंगी। कर लो ना थोड़ा खुद से प्यार। जैस्मिन, आपका टॉपिक है कर लो ना अब खुद से प्यार। सबको बहुत बहुत नमस्ते। आज का दिन आपका सबका शुभ हो। मेरी परिभाषा प्यार की सुन के आप उछल पड़ो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक है करो ना खुद से प्यार। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत चीजों में तोलते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं कितनी चीजें कर लूंगी, मैं घर का ध्यान रख लूंगी, मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगी, मैं काम करूंगी, मैं क्या क्या करूं, एक इतने से ही वक्त है मेरे पास, उसमें अपना भी देखूं और दूसरों का भी देखूं।
पर लेडीज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जब हम खुद से अपने आप से जब प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को अपना प्यार बता पाते हैं। हम खुद खुश होते हैं तो दूसरों को अपना प्यार जाहिर कर पाते हैं। तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कर लो अपने से बहुत 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 ज्यादा प्यार। प्यार वो है जो है ना हमको खुद को ही बदल देता है। हम ये भी पता नहीं कर पाते कि कब हम खुद अपने प्यार में खो गए कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, खूबसूरत लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, और तब हम सबसे प्यार से बात करते हैं। तब हम हमारे पास चाहे कोई भी गुस्से में भी आ जाए तो भी हम एकदम प्यार से बात करते हैं कि यार कुछ नहीं है, मैं खुद खुश हूँ, मैं खुद अपने प्यार में हूँ, फिर क्या परवाह कि कोई हमारे बारे में क्या बोलता है या कोई हमारे बारे में क्या कुछ नहीं बोलता है। तो कर ले खुद से प्यार और जिंदगी को और ज्यादा रंगीन और खूबसूरत बना दो। जब खुद से प्यार करेंगे तो सबसे प्यार। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके इस भाषण को सुन के तो हम सबको आपसे प्यार हो जाए, खुद के प्यार के साथ साथ। आपने इतने अच्छे से कहा, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी पायल को। देशभक्ति मनीषा। कविता जी आप हिंदी में बोलना चाहेंगे कि इंग्लिश में? पायल। सॉरी। पायल हिंदी या इंग्लिश? हिंदी हिंदी। आज सोची थी इंग्लिश में ट्राई करूंगी बट अब लग रहा है हिंदी में ही बोल दूं। करो ना। कविता आज का दिवस ही रख दो, हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया आज हम लोगों ने। वही मुझे लगा प्यार दिवस से ज्यादा हिंदी दिवस हो गया। So should I try in English? Actually, I'm little nervous. नहीं, you be comfortable जैसे आप कर, हम तो ऐसे ही करेंगे टाइम पास थोड़ा अपने साथ। Listen to your heart, अपने दिल की सुनो। किसी का पहला प्यार होना अच्छा होता है, किसी का पहला प्यार होना अच्छा होता है, पर उसका आखिरी प्यार होना सबसे अच्छा होता है। पायल आपका टॉपिक। तो पायल, your time starts now. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, आ रहा है बहुत अच्छे से। ओके। पहला प्यार, कहते हैं पहला प्यार आप उम्र भर याद रखते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा, ये विषय बहुत ही अच्छा है। पहला प्यार, आखिरी प्यार जरूर होता है। एक मिनट, सॉरी, टॉपिक फिर से बोलना मनीषा, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई एम सो सॉरी। किसी का पहला प्यार होना अच्छा होता है, पर उसका आखिरी प्यार होना सबसे अच्छा होता है। यस, पहला प्यार बोलते हैं। पहला प्यार आप कुछ भी किसी को भी देखते हो या कुछ, जब हम छोटे होते हैं तो किसी को भी देख के हमारे मन में बहुत सारी हमें अच्छा लगता है देख के कि यार ये कितना सुंदर लग रहा है, ये देखने में कितना अच्छा है, तो हम उसे इनफैक्चुएशन बोलते हैं। वो होता है व्हेन वी आर स्मॉल। बट हाँ, पहला प्यार मुझे नहीं हुआ कभी, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहला प्यार बहुत बहुत ही रोमांचक होता है। आप सो सॉरी, नहीं हो रहा है। कोशिश करो, हो जाएगा। तो है। प्यार एक कहते हैं प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। मीन्स आप सुख दुख में, गम में अपने आप को एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनते हो, तो वही प्यार अगर आपका आखिरी तक रहता है तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। आपने बहुत सारा बोला। ठीक है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है बंदा। मामला आपके आखिर पहले प्यार, पहले इन्फैचुएशन का था, तो ये तो स्वाभाविक है। हाँ, तो अब मैं आखिर में बुलाना चाहूंगी हमारी मेहमान साहिबा को। आप क्या हिंदी में बोलना चाहेंगे कि इंग्लिश में बोलना चाहेंगे? सरोज जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सुनो, प्यार हमेशा हम लोगों के अंदर देसी रूप ले आता है, तो ऑफ कोर्स आई एम सो सॉरी, मैं मिक्स भाषा में बोलूंगी। मनीषा, नहीं, एज अ गेस्ट यू आर फ्री टू डू दैट।
मैं कोशिश do- करूंगी हिंदी में बोलने की, एक आध नहीं, वर्ड। आप इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगी, मैं हिंदी में बोलूंगी एक आध इंग्लिश वर्ड्स के साथ। Okay, do I need to keep a timer for Saroj ji? यस प्लीज। Okay. नहीं तो आज खत्म नहीं होगा। हाँ। तो एक काम करती हूँ सरोज, मैं तुम्हें हाँ। टॉपिक हिंदी में नहीं दे रही, मैं टॉपिक तुम्हें इंग्लिश में दे रही हूँ। अब उसको तुम कैसे टेक लेना चाहोगी वो तुम लो, हिंदी इंग्लिश ऑल योर चॉइस। तुम हमको बताई तो नहीं थी टॉपिक देना पड़ेगा, तुम बोली लव आजकल पे बोलना है। I don't need a perfect relationship. I just need someone who won't give up on me. Saroj. Yes. So, friends, मनीषा ने सम अप किया है इस चीज को, एंड दिस इज एक्चुअली मेरी पूरी अपनी ट्रू लव लाइफ जो मेरे हस्बैंड के साथ स्टार्ट हुई थी आज से 30 साल पहले। 3 decades आई हैव बीन मैरिड, एंड मेरा पहला प्यार मेरे पति थे, मेरा आखिरी प्यार भी मेरे पति हैं, बीच में बच्चों ने थोड़ी थोड़ी जगह ली और बाकी रेस्ट सर्कल तो है ही है। तो हमारी कहानी है बहुत छोटी सी। एक फिल्म आई थी इंग्लिश बाबू देसी मेम, लेकिन हमारे संग उल्टा है, मैं इंग्लिश मेम थी, मेरे पतिदेव देसी बाबू थे। तो मैं बड़े शहर की लड़की और मेरे पतिदेव छोटे शहर के गोरे। एंड जैसे बबीता ने कहा, मिल्स एंड बून्स की कहानी, हर लड़की का सपना होता है टॉल डार्क हैंडसम, लेकिन हमारा सपना भी टॉल डार्क एंड हैंडसम था, लेकिन पैकेज में सब कुछ उल्टा आया। बट जब हम लोगों की मुलाकात, मनीषा स्टॉप लाफिंग, यू नो एवरीथिंग, जब हमारी प्यार की कहानी स्टार्ट हुई तो जब वो पैकेज खुला तो वो उल्टा होने के बावजूद भी इतने अट्रैक्टिव थे, इतने गुणों के खान थे कि एवरी डे टिल नाउ आई फॉल इन लव विद हिम एवरी डे। सो मेरा कल, आज और कल शायद फॉलिंग इन लव ही होने वाला है। पहले उनको जानने में फॉल इन लव हुआ, फिर उनकी हैबिट्स, उनका केयरिंग, एंड यू कॉट माय आई। वो आज भी जब कनखियों से मुझे कुछ करते देखते हैं और वो अप्रिसिएशन के भाव उनकी आंखों में आता है, तो दैट कैचेस माय आई। सो आई स्टिल फॉल इन लव विद हिम एवरी डे, एंड दिस इज माय लव स्टोरी। Wonderful, wonderful take on topic, Saroj ji. थैंक यू सो मच। लवली लवली स्पीचेस लेडीज, बहुत बहुत अच्छे से, खूबसूरती से, पूरा एकदम लव इज इन द एयर, यू नो, इट्स जस्ट फ्लोइंग इन द एयर लाइक एनीथिंग। अच्छा, कैन आई गेट 4 minutes from you all? So I would like to throw 2 topics to Manisha and Nidhi. So first, Manisha, your take on the Shah Rukh Khan and Ajay Devgan topic. Nice. You have 2 minutes. Bhavika, please. Yes. Timer. 1 second. Yes, Manisha ji, your time starts now. 2 minutes left. मैं इस टॉपिक की शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूंगी कि जैसे तो आपको दाल चावल पसंद है कि पिज्जा, हमें वैसे ही शाहरुख खान की फिल्में देखना, उसके बारे में सोचना, और उसकी तरह से कोई रोमानी सा पति मिल जाए, ये कल्पना में जीना 20 साल 25 साल की उम्र तक तो ठीक लगता है। पर मुझे आखिर में मालूम है, हम दिल जेतु के सनम वाले अजय देवगन की हमें ज्यादा जरूरत है, जो जिंदगी भर हमारे सपनों का ख्याल रख सके, हमारे अपनों का ख्याल रख सके, हमारे अरमानों को पूरा कर सके, और जरूरत पड़े तो मुझे मेरे प्यार तक भी लेके जा सके। वो जो गहराई उसके प्यार में है, वो शाहरुख खान की किरण, सेनोरिटा, आई एम देयर फॉर यू, ऐसे डायलॉग्स में सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही लुभाता है। फिर उसके बाद दाल चावल आटे का भाव नजर आ जाता है। तो मुझे वो प्यार चाहिए जो गहरा हो, उथला नहीं, जो हल्का ना हो, जो हवा में उड़ जाए। मुझे सागर की तरह बहने वाला प्यार चाहिए, गहरा वाला। इसीलिए मैं हमेशा अजय देवगन जैसे प्यार जिसमें गहराई हो, उसमें विश्वास करती हूँ, और वैसा ही पार्टनर मैंने चूज किया है अपनी जिंदगी में। और मुझे गर्व है कि मेरे पास वैसा एक बंदा है जो न मेरे बिना रह सके और मेरे खिलाफ कुछ सुन सके। और यही हमें सोचना होता है, पर ये एक उम्र के साथ बदलाव आता है। हमारे में ये जो मेच्योरिटी है वो उम्र के साथ आती है। 16 साल के समय हमारा एक सोच होती है, 25 पे एक, 40 पे एक, और खैर 40 पे आके तो हम खुद को प्यार करना सीख जाते हैं। हमें ना शाहरुख खान चाहिए ना अजय देवगन,
हम खुद को प्यार करना सीखते हैं और वही हमारे प्यार की परिभाषा बन जाती है कि खुद के लिए खुद के प्रेम पत्र लिखो, ताकि आप अपने आसपास खुशबू फैला सको, फूल खिला सको और महक सको ताउम्र अपने प्यारे रिश्तों के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। धन्यवाद। Wow, fabulous. Thank you. So next, can we have Madam Evaluator? कहाँ गई निधि? Yes. Yeah. So Nidhi, your topic, self-love. Self-love. Yes. Okay, so Nidhi, your time starts now. मैं अपनी favorite हूँ. I am my favorite. And that was the dialogue came in the favorite movie of mine by Kareena Kapoor, Jab We Met. Good afternoon, friends and cafe family. Today I'm going to talk about something which I love. Yes, self-love. And that is the most important love. We can love things, we can love people. What we forget to love is that mirror which shows our real worth. You know, at times we forget that this life is so precious. In the name of name, fame, and success, what we miss is this life. When we are old, we crib, oh God, I wish I was young again. When we are young, we wish we can be retired again. That contentment is never there. Once you love yourself, once you self-love yourself, the contentment will come. And that what happened when people like Kangna Ranawat stood against the entire industry and talked about herself and her struggle. It happened when Amitabh Bachchan lowered his standard to support his family and came down to Kaun Banega Crorepati and changed everything. His mirror told his worth. His mirror told that he loved himself more than the people around him. And we know the rest is history. So today, my dear friends, I would have to say that love yourself. I love myself. Being the fatso I am, I still very confident. I am very confident, come what may. And recently, my dream of walking on the ramp was come true 2 years back when I was offered a plus size clothing. Trust me, if you love yourself and you have that confidence, nothing can be impossible. And also, let me tell you all, I've been married for 10 years and I've dated that person for 18 years. So if you love yourself, nothing is impossible. So do you love yourself also? Over to you, madam. Wow. How do you all do that? On the spot and bang on with examples and, you know, fabulous. Awesome. I simply fell in love with your speech. Lots to learn actually from both of you. Thank you. Thank you for doing it, Nidhi and Manisha. Over to you all. I was not aware कि वो क्विकी में मेरे ही पास वो बॉल आने वाली है. But it was nice. चलिए अब हम चलते हैं मैडम इवैल्यूएटर के पास. Thank you so much, Manisha ji. So, as it was already mentioned, it was more of a Hindi viewers today. So, I just have one evaluation to be done, and that I will do it quickly. Sheetal ji, your topic was love aajkal, and let me tell you, I love the way you talk that how love is mysterious. I know that suspense thing was a good audience hook. Now, I love the way you transited in your script when you talked about that love can be with people, with the husband, with the children, and then you made sure to point out to focus on the husband. You had a matrimonial side where you talked that how that if we don't know people and still we can have that everlasting love, and that you again continued to explain that to your children, and that was done so beautifully in such a tranquil manner that I was in awe with your speech. So I really liked the take on the topic, Love Aajkal. You made sure to give your take that Love Aajkal does not just mean to demean the newcomers, but also to
accept what is good. You talked about gay marriage. You talk about live-in relationship. You talk about liberal marriage, liberal love. So I really like the take on talk, making sure that you don't demean that today's youngsters' love is nothing, our love is pure. You made sure to balance it in a right way. But other than that, I have to tell you that your address was a little longer. I was expecting a little more voice modulation, like when you talked about matrimonial side, and the way you talked with your daughter, you could have a little voice modulation. No, beta, nowadays you have to fall in love, or we just fall in love. You could have a different voice modulation up and down, and your message at the end was love yourself. I was hoping that that could come little earlier, so that you could elaborate a little more, so that the audience can have a better thinking and have a good takeaway. I was hoping, since it's a level 2, I was hoping a little bit of body language from you, because it was more of a dictation reading. I'm sorry to say this, but other than it, you wrote a very, very, very good speech, and making sure to balance things. That was very much important. Kudos to you. Keep giving speeches again. Over to you, Manisha. Thank you. You can do Hindi one also, Nidhi. ऐसा कुछ नहीं है. आप हिंदी भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है. क्या क्या? Nothing. ठीक है. Yeah. अगर मैं इवैल्यूएशन करूं तो ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे से अभी नहीं लिख पाया, क्योंकि लगातार मैं पूरा सेशन कंडक्ट कर रही थी. बट मैंने जो चीजें नोटिस की उसे बहुत ही छोटे में मैं आप सबके सामने बताना चाहूंगी, बिकॉज कंटिन्यूअसली आई इन द थिंग, तो आई कुडंट गेट द टाइम टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली. सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी बबीता जी आपके साथ. आपकी स्पीच बहुत अच्छे से आपने शुरू की, और आपने जो सीधा हमें मिल्स एंड बून्स के एरा पे आप ले गए, टॉल डार्क हैंडसम, एंड वहां से अपने हस्बैंड के साथ जैसे आपने तुलना शुरू की, वो सब बहुत ही दिलचस्प था. और हमें धीरे धीरे आप एक एक फ्लेवर पे लेके आ रही थी. पहले प्यार, फिर कैसे शादी के बाद आपका रूठना बनाना. आपने उसमें बहुत ही खूबसूरती से रेस्टोरेंट्स के नाम, चाय की प्याली, सबको बहुत अच्छे से गूंथा. जिसे कहते हैं ना, धीरे धीरे स्टोरीज को बुनना. आपने बहुत अच्छे से हमें धीरे धीरे एक एक लेवल करके आप ऊपर लेके जा रहे थे. और उसके बाद सबसे अच्छा तरीका था आपका मैगी का, इंस्टेंट मैगी का आज के प्यार के साथ कंपेयर करना. बट वहां पे आप क्या कर सकते थे, आप अपने टाइम के, ये खाली मेरा सजेशन है नेक्स्ट टाइम के लिए, कि आप अपनी शादी को शाही बिरयानी और आज के प्यार को क्विक इंस्टेंट नूडल्स की तरह अगर कंपेयर करते, बजाय बिरयानी में सब्जी और चीज का एग्जांपल देने के, तो आपका प्यार शाही बिरयानी और आज का 2 मिनट्स नूडल्स. तो आपको बहुत ज्यादा उसमें बोलने की ही जरूरत नहीं थी. आपके वो दोनों जो व्यंजन थे वो आपकी बात को हमारे सामने बहुत क्लियर तरीके से मैसेज को पहुंचा देते. पर ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण लिया और आज के साथ जो पहले का कंपैरिजन किया, आज का जो एक्चुअली जो तरीका है कि दिखावा, सोशल नेटवर्क के लिए डायमंड्स, ब्रांड्स, आपने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें बहुत खूबसूरती से बैलेंस तरीके से डाले. मतलब एक अच्छी बिरयानी की तरह धीरे धीरे अपने स्पीच को पकाया और हमारे सामने बहुत प्यार से परोसा. बट उसमें क्या है कि अपने प्यार का थोड़ा और फ्लेवर हमें दिखाते, बिकॉज आपका प्यार तो शाही बिरयानी था मैडम. थोड़ा अच्छे से उसमें उसका एक लहजा, एक एग्जाम्पल हमारे सामने और प्यार का देते तो हमें सुन के और मजा आता. पर आपकी शुरुआत और अंत दोनों बहुत अच्छा था. थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन और थोड़ा सा कंटेंट पे थोड़ा क्रिस्प और होना, बाकी यू आर टू गुड, वेरी नाइस. हर स्टेप के साथ आपकी स्पीच निखरती जा रही है और आपको देख के बहुत अच्छा लगा. और मैं आपको बताऊं, मैं आपका कल वीडियो देख रही थी, आपका जो एक वो नेचुरल तरीका था बोलने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि तीन वीक से हम साथ में स्पीकर्स क्लब में हैं. और आपको देख के मुझे लग रहा था प्रैक्टिकली आप उन सारे जो निधि जी आपको सजेशन देती हैं, आप उनको प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आई वाज सुपर हैप्पी सीइंग दैट. कल की शुरुआत आपकी इंटरव्यू के साथ ही हुई थी. Very nice, Babita ji. Manisha, I'd like to say something here. जब से बबीता ने कैफे ज्वाइन किया है, उसकी ग्रोथ मैंने देखी है, and she has excelled. I'm very proud of Babita. Thank you so much. Thank you for cafe. Thank you cafe. And Manisha, I would like to say something. वो जो मैंने मैगी का एग्जांपल दिया, this is my real life experience.
कि जब मैगी मैं बनाती थी बचपन में तो उसमें सब्जियां चीज वीज सब डाल के एकदम वैसे फ्लेवरफुल बनाती थी, और जब मेरे बच्चे बनाते हैं तो तुरंत बस उबाला पानी डाला और खा लिया। बट एक दूसरे के आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। हाँ या हाँ, अब ममता जी, is she there? Yeah. Okay. आपने बहुत अच्छे से ओके आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की ममता जी, और आपने उम्र के साथ कैसे प्यार परिपक्व होता है और प्यार के दायरे में एक एक करके हम रिश्ते कैसे जोड़ते जाते हैं उसको बहुत अच्छे से समेटा। पहले बचपन का प्यार पेरेंट्स के साथ होता है, फिर पति के साथ, फिर बच्चों के साथ, फिर सबको एक साथ समेट के औरत खुद को लेके चलती है। उस बात को आपने बहुत ही अच्छे से कहा। आपने आज की पीढ़ी के बारे में जो अपने विचार रखे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज की पीढ़ी के प्यार में भी कहीं ना कहीं कुछ खासियत तो होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा ही प्यार बहुत ग्लोरीफाई होता था, आज के लोगों का तरीका बदला है, लेकिन कुछ कुछ अच्छी चीजें उनके पास भी है। तो हम चाहें तो थोड़े में उनके प्यार की भी कुछ अच्छी बातों को हम अपने उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हर जमाने का कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। तो हमें इधर का प्लस भी लेना चाहिए। जब हम इधर के बहुत सारे प्लस चीजें ले रहे हैं तो हमें उधर का भी कुछ एक अच्छी बात हमें वहां से उठाना चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा आई एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करें तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकती हैं। आपकी शुरुआत और अंत दोनों ही बहुत अच्छा था। लास्ट में थोड़ी टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं लास्ट का सेंटेंस नहीं सुन पाई थी आपका, पर आपने बहुत अच्छे से बोला। कीप इट अप। कीर्ति जी, आर यू देयर कीर्ति? प्यार, इश्क, इबादत, मतलब प्यार को लेके जितने खूबसूरत शब्द डिक्शनरी में, जितनी खूबसूरत आप दिखती हैं उतने सारे खूबसूरत शब्द आपने हमारे सामने परोस दिए। मतलब शुरू से लेके इमरान हाशमी तक के गानों में जितने शब्द हिंदी के हो सकते हैं, प्यार के, उर्दू के हो सकते हैं, आपने सारे के सारे अपने झोली में समेट के हम पे फैला दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि प्यार आपने इतनी खूबसूरती से बिखरा दिया, लव वाज इन द एयर, पर आप उसे कहानी में नहीं समेट पाई। आपने इतने सुंदर सुंदर कोटेशंस यूज किए, इतनी सुंदर कविताओं की पंक्तियां ली, इतनी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, पर उसे एक कंटेंट का रूप नहीं दे पाई कि आप एक्चुअली बोलना क्या चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, आपने जो साइड में कोटेशन लगाया था और आपका ध्यान जो पूरा उधर ही था कि उसमें से आप सही भारी भरकम हिंदी के शब्दों को चुन पाए, उस कोशिश में आप अपनी खुद की जो नेचुरल फ्लेयर थी आप उसे खोती जा रही थी। शायद आप मेरी बात समझ रही हो, बिकॉज आपको नहीं समझ रहा था, आप जो साइड में देख देख के बोलने की कोशिश कर रहे थे, उसकी जगह अगर आप उस चीज को टिप्स में लिखती और अपनी खुद की भाषा में बोलती तो हम तक वो बात ज्यादा पहुंचती। क्योंकि क्या हुआ, सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, मतलब सारी कुकिंग की अच्छी चीजें थी, पर वो मिलके एक अच्छी डिश नहीं बन पाई, वो बिखरी बिखरी रह गई, उन्हें एक कंटेंट में आप समेट नहीं पाई। पर्सनल एग्जांपल देके एक स्टोरी के रूप में, जैसे बाकी स्पीकर्स ने कोशिश की कि एक पर्टिकुलर स्टोरी देके, वैसे नहीं हुआ। मतलब एक दिशा आप नहीं ले पाई। बाकी आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, और इतनी अच्छी हिंदी का प्रयोग जो देख के ही किया, पर काबिले तारीफ था। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू। नीपा, या धीरे धीरे जैसे कोई मंजता है, सोना कुंदन बनता है, आप वैसे स्टेप बाय स्टेप एवरी वीक, कभी ऑन स्पॉट, कभी स्पीच लेते लेते धीरे धीरे निखरती जा रही है। आपकी आवाज में वो आत्मविश्वास आते जा रहा है, और आप इतनी आसानी से बैठ के अच्छे से टॉपिक को टाइम के अंदर खत्म भी करती हैं, उसमें एक रोचक कहानी भी आप जोड़ती हैं, और उसमें बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग भी करती हैं, क्योंकि आप में अब वो आत्मविश्वास आ गया है कि आप बोल क्या रही हैं या आप बोलना क्या चाहती हैं, वो आपको पता है। कैसे आपको शुरू करना है और कैसे आपको खत्म करना है, ये अब आप सीखते जा रहे हो। शायद निधि जो हर बार हमें समझाती है, आप उसे सिर्फ सुन नहीं रहे, आप उसे अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग दैट इनसाइड। सो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, ढाई आखिर प्रेम का उदाहरण दिया, कृष्ण, मीरा, सुदामा, माँ बेटे, यानी आपने प्रेम के जितने उत्तम उदाहरण हो सकते थे वो सारी अपने भाषण में आपने दी। एक अच्छी रोचक
दिल को छू लेने वाली कहानी जो प्यार की थी दादा दादी वाली, वो हमारे साथ बांटी, और सच में वो हमें अंदर से एक प्रेरणा देती है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। आपने वो हमें बताया, और उसके साथ साथ आपने प्यार की पराकाष्ठा जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया, और प्रेम के पूरे स्वरूप की बहुत बहुत अच्छी भाषा हमारे सामने प्रस्तुत की। पर आज की पीढ़ी के हिसाब से भी अगर एक छोटा एग्जाम्पल आप उसमें ऐड कर पाते, तो वो आज की थीम के हिसाब से आपकी स्पीच रॉकिंग होती। अभी वो परफेक्ट थी, डिलीवरी वाज गुड, कंटेंट वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट उसमें सिर्फ थोड़ा सा अगर आज के साथ जब आप कंपेयर ही कर रहे थे, तो आज का एक छोटा लाइव एग्जाम्पल अगर आप दे पाते, तो शायद वो उसमें और एक निखार और एक फ्लेवर लेके आ जाता, वरना यू वर रॉकिंग। बहुत अच्छा। Thank you. I'll keep it that in mind. Thank you. Yeah. अब आती है ऑन स्पॉट स्पीचेस की बारी। आरती। हाय मनीषा। आपको देख के एक्चुअली अभी भी आप काजोल, शाहरुख खान वाली काजोल वाले मोड में ही हो, आप उससे ऊपर आए ही नहीं, तो आप ज्यादा बोल नहीं। मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि ये जो, वैसे तो मुझे पता था कि आज का टॉपिक मेरे लिए चैलेंजिंग ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा क्लोज हिट कर गया। कोई बात नहीं, आप हमारे सेशंस में बार बार आइए, आप बोल पाएंगी। आपका मैंने ऑडियो नोट जो आपने भेजा था, वो स्पीच मैंने सुना था, बहुत अच्छा बोल सकती हैं। कभी कभी एक बैड डे हो जाता है, कभी कभी ऑन स्पॉट में ये होता है कि कोई टॉपिक तुरंत क्लिक करता है तो करता है, कई बार नहीं भी कर पाता है, ये एक लक की बात है। तो आप ज्यादा ये थोड़ा दिल के बहुत पास था। आपकी धड़कनें हम तक पहुंच रही थी मैडम, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, और हमारे सेशंस आप आइए, और नहीं आ पर तो यूट्यूब पे सुनिए, तो आपको सारे टिप्स पता चलेंगे, स्पीच के तरीके पता चलेंगे, तो उससे आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी। कोशिश करते रहिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट टर्न किसका था? रिंकू। रिंकू थी नेक्स्ट। रिंकू थी। ओके, रिंकू। रिंकू, आपने बहुत अच्छे से शुरू किया था, और आपने जो कहा बहुत सही बात कही थी कि समय के साथ प्यार का जो स्वरूप है बदलते जाता है। एक ही इंसान से आप दोबारा प्यार कर सकते हो। हाँ, हम कुछ और सुनना चाह रहे थे कि क्या कैन लव हैपन ट्वाइस, वो एक अलग टेक हम ले रहे थे, पर आपने बहुत अच्छी बात की कि उसी इंसान से आपको दोबारा प्यार हो सकता है। समय के साथ, उसके साथ समय गुजारते गुजारते बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, और आप उसे फिर से प्यार कर सकते हो। ये भी प्यार की पराकाष्ठा ही तो है। आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की, फिर पता नहीं क्यों आप अंदर से थोड़ा नर्वस हो गई और उस चीज को अच्छे से सम अप नहीं कर पाई, पर मुझे पता है बहुत अच्छी स्पीकर हो और बहुत अच्छा बोल सकती हो, तो अगली बार आप कोशिश करना, Yes. बहुत अच्छे से आप बोल पाओगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर जैस्मिन। Yes. Very nice take on topic. I just loved your speech like anything. खुद से प्यार करने की बात इतने खूबसूरती से आपने की, इतने सारे तरीके से की कि मजा आ गया आपको सुन के, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए, और बहुत अच्छे से अपनी ऑन स्पॉट स्पीच की, जैसे कोई रेडी स्पीच बोलता है वैसे आपने अपनी ऑन स्पॉट स्पीच दी। बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा है आपके टॉपिक को सुन के, बहुत अच्छे से आपने बोला। थैंक यू। पायल। हाँ, हेलो। हाँ मनीषा बोलो। पायल, आप को 2 बार 3 बार होने के बाद भी आपको ना टॉपिक समझ नहीं आया था, आप टॉपिक को पकड़ नहीं पाए थे। आपने पहले प्यार से शुरू किया, तो मुझे लगा कि उसके बाद भी शायद आप उसको कहीं और मोड़ दे दोगे, पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे और आप टॉपिक को सही तरीके से पकड़ नहीं पाए थे, इसीलिए आप उसे ठीक से पूरा नहीं कर पाए। आप पहले प्यार में ही खोके रह गए थे, वरना आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, और थोड़ा सा कोशिश करती तो बहुत अच्छे से बोल पाते। एक्चुअली ऑन स्पॉट में होता क्या है ना, टॉपिक समझने में ही टाइम लग जाता है।
The problem is that only. I tried, but I thought today I will do the best. को But presence of आज mind एकदम नहीं हुआ. हो जाता है ऐसा कभी कभी, और कोई बात नहीं, आप अच्छा बोल सकते हो, मुझे पता है आपने 2 बार बहुत अच्छी स्पीच दी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है. And from yesterday I was trying to say in English, but आज इतना हिंदी सुना ना मैंने, तो I thought I will do it in Hindi only. फिर भी नहीं हुआ. हिंदी में चमक गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छी कोशिश की ना पायल. कोशिश करना, बोलना कि मुझे बोलना है, ये सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आप नॉमिनेट करते हो कि मुझे बोलना है. आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप बहुत अच्छा बोल सकते हो. आई थिंक आई एम डन विद ऑल द इवैल्यूएशन. Hey Manisha, evaluate me also. You are above that, dear. No, whatever it is, yaar, I need to I have got scope for improvements. You were too good, Saroji. No need of evaluation. नहीं, आपने बहुत अच्छे से, सरोज आपके लिए भी हम कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को पकड़ा और बहुत अच्छे से शुरुआत की, और उसमें जो थोड़ा सा आपने हास्य का पुट डाला, खुद ही सेल्फ कॉमेडी की, जो कि सबसे मुश्किल होता है, खुद की चीजों का खुद एक मजाक के रूप में, हल्के रूप में अपनी बात को बोलना जिससे हमें हंसी आए. मैं खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी आपकी स्पीच को सुन के, तो आपने वो सारे रंग जो प्यार की और जिंदगी के होते हैं अपनी स्पीच में समेटे, और बहुत बहुत अच्छा था आपको सुनना. हमें आपको सुन के बहुत मजा आया, और आप आते रहिए और हमें आपको सुनने का मौका देते रहिए. Thank you so much. Over to you, Kavita. So another fabulous session comes to an end with this. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay. So with this, we are halfway through. 4 sessions are already done, and we can already see improvements in the speakers, in their confidence, and also in content. So kudos to the team. Nidhi and Manisha, you both are doing fabulous. Today, nobody used the word of the day. Someone used. Saroji used. किसी ने तो यूज किया था. Saroji. Okay, so Saroj used. So very nice, but we will like to see more, on the spot usage of the word of the day, because that shows your versatility. क्या बोलते हैं निधि? Versatility. Yes, fabulous. So let's hope for better sessions in coming days. And thank you everybody for joining in. And Kavita, being a guest, I need to give a speech. Okay. See, this you gave जी, आप बताइए आपको हमारे सेशन में आके कैसा लगा, अपने विचार रखिए. बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो बचपन से एक्सटेम्पोर करते आए हैं, बट इस एज में आके ये जैम सेशन करना, इट वाज सो मच फन. मुझे भी ये सीखना है कि मुझे सिर्फ हिंदी में बोलना है या सिर्फ इंग्लिश में बोलना है. ये मुझे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और अगली बार जब आपका नेक्स्ट फ्राइडे, सॉरी अगला शुक्रवार जब आपका ये सेशन होगा, तो मैं उसमें एक पर्टिकुलर मैं प्रैक्टिस करके आऊंगी सिर्फ एक भाषा में बोलने की. And Kavita, I am so happy to be a part of this. And this is such a new concept that you people are developing in cafe. हर एक एरिया को आप लोग इतने सुंदर से डेवलप कर रहे हो कि हर कोई आपके कैफे प्लेटफॉर्म पे आके बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं. Kudos to cafe. All thankful to the members, actually. Yes, whatever it is beautiful. Yeah, I'm actually very amazed and I'm very proud to be a part of cafe. Thank you so much. So can we close the session? Thank you everybody, and bye bye. Thank you, bye bye. Sorry, कविता एक फोटो तो ले. photo I've clicked. Photo ले लिया. Okay. चलो bye bye. Bye all. Bye. Bye.